A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a new chapter of part B, that is financial statement of company. In this chapter, you know very well, there are basically two statements are prepared by the company. The first statement is a balance sheet, and number second is a statement of profit and loss account. In the last few videos, we already discussed how company prepared its balance sheet, and you know very well the company's balance sheet will be prepared in vertical format. In this, there are basically two heads: equity and liability and assets. In the equity and liability, there are basically four major heads: shareholder funds, share application money, pending allotment, non-current liability, and current liability. If we are talking about the asset side, so you know very well, in the asset side, there are basically two major heads, that is non-current assets and current assets. So now we will move to the second format of the financial statement of company, that is a statement of profit and loss account, which are prepared accordingly to the Companies Act 2013, Schedule 3, Part 2. So how company prepared its profit and loss account? Company prepared its profit and loss account in vertical format. पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है वो किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करती है, दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करती है. सो अगर हम लोग कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. This statement will be prepared by the company according to Companies Act 2013, according to the Part 2, Schedule 3. It means कंपनी जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो पार्ट 3 और पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लिस्टेड होता है. एंड द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन द वर्टिकल फॉर्मेट. किस फॉर्मेट में होता है? वर्टिकल फॉर्मेट में होता है. And the purpose of preparing the profit and loss statement of profit and loss account of the company to determine the profit and loss before tax and after tax after the at the end of the year. यानी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाती है ताकि वो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर के वो डिसाइड कर सके कि उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है. द फर्स्ट वन इज अ before tax and number second is a after tax. So now we will move to the format of the statement of profit and account. So as you can see that on your screen, that is format of profit and loss is specified in part 2 schedule 3 of Companies Act 2013. Format given in CBSE circular number 243 dated July 2, 2013 for board examination is given below. यानी कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे ये आपके सामने प्रेजेंट किया है. सो यू कैन सी दैट कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दिया है इट इज फर्स्टली इट इज इन फॉर्मेट ऑफ द वर्टिकल व्यू, यानी वर्टिकल फॉर्मेट में है. जनरली हम लोग क्लास 11th में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे या फिर बैलेंस शीट बनाते थे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते. बट टुडे when we are talking about the financial statement of company, so you can see that we prepared a balance sheet or we prepared a statement of profit and loss account in it is they are the in the vertical format. Vertical format में है. अब आप इसमें format में देखो, top of the format you can see that firstly we write down the name of the company and thereafter we write down the profit and loss statement for the year ended ... यानी किस साल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो. उसके बाद इन रुपीस में आपका फिगर है. अब उसके बाद अगर आप देखो तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहला हेड है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन.
इसमें भी 4 कॉलम आप देख रहे हो, पहला है पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग ईयर एंड द फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड. यानी दे आर बेसिकली 4 कॉलम. फर्स्ट कॉलम विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम विच आर रिलेटेड टू द नोट नंबर, थर्ड इज अ करंट ईयर का क्या अमाउंट है और प्रीवियस ईयर का क्या अमाउंट. तो उसमें अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, दे आर बेसिकली 7 हेडिंग्स हैं. 7 हेडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें डील की जाती हैं. जैसे कि पहला हेडिंग है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी वैल्यू है. फिर सेकंड है अदर इनकम, कितनी वैल्यूज हैं. फिर थर्ड है टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू. So the third total will be a third point, that is total revenue equals to the first plus second. Number 4 is the expense. So you can see that they are basically few expenses categorized under the profit and loss account. ये बात आपको ध्यान रखना है. कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो अपने पूरे एक्सपेंसेस को कुछ स्पेसिफिक हेड में डिस्ट्रीब्यूट करती है. जैसे कि उसने अपनी लाइबिलिटीज को, उसने अपनी एसेट्स को और उसने अपनी शेयर कैपिटल को जिस तरह से कैटेगराइज किया था, वैसे ही कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय अपने सारे एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली हेड में डिवाइड करती है. जो हेड्स हैं एक्सपेंस के अंदर वो देख लीजिए. नंबर 1 इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. नंबर 2 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नंबर 3 चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये पूरी हेडिंग है. नंबर 4 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट. नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड नंबर 7 इज अदर एक्सपेंसेस. एंड आफ्टर दैट ये पूरा फोर्थ पॉइंट ऐड कर दो. पूरा फोर्थ पॉइंट मतलब एक्सपेंस का जो पूरा पार्ट है, जो जितने हेडिंग्स हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस, ये 7 पॉइंट जब ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस. अब यू नो वेरी वेल हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड, द प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. रेवेन्यूज कितनी है थर्ड पॉइंट में, 1 + 2. जो अपने थर्ड पॉइंट है, थर्ड हेडिंग है दैट इज टोटल रेवेन्यू, उसमें जब आप फोर्थ को माइनस कर दोगे, थर्ड में आपने टोटल रेवेन्यू का पूरे रेवेन्यूज को टोटल कर दिया है, ऐड कर दिया है, उसमें से आप जब टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा नंबर 5 दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कैसे आएगा? द थर्ड पॉइंट, द थर्ड अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फोर्थ अमाउंट. यानी जब हम थर्ड में से फोर्थ के टोटल को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर यही माइनस में आ जाता, यानी कि अगर आपका थर्ड पॉइंट कम होता और फोर्थ पॉइंट आपका ज्यादा होता, फोर्थ पॉइंट का अमाउंट, तो उस सिचुएशन में आपको लॉस हो जाता. और लॉस के केस में हम लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ये भी याद रखिएगा. तो प्रॉफिट रहेगा तो टैक्स रहेगा, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो टैक्स भी आपको नहीं पे करना होगा. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आपका नंबर 5th पॉइंट. उसमें से आपने नंबर 6 पॉइंट दैट इज टैक्स डिडक्ट किया. टैक्स एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स होता है, उस टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने स्पेसिफिक रेट से आपने टैक्स पे किया, एंड देयर आफ्टर द अमाउंट विल बी अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज अ पॉइंट नंबर 7. So you can see that your profit and loss statement will be divided into the 7 headings. How many headings are there? They are basically 7 headings. Revenue from operation, other expense, sorry other income, total revenue, expense. Expense के अंदर कुछ headings हैं, फिर उसको total करेंगे तो आ जाएगा total expense. फिर total revenue में से total expense को minus करेंगे तो आ जाएगा profit before tax. फिर profit before tax में से हम लोग tax minus करेंगे, आ जाएगा profit after tax. So this is your final and full answer of the form of statement of profit and loss account. बट यहां पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या रिकॉर्ड करें, अदर इनकम में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, टोटल रेवेन्यू में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस की जितने भी हेडिंग्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें हमें किस हेड में लिखना होगा. तो इसके लिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स वी टेक द फर्स्ट हेडिंग दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं. ओके, so let's we take the पॉइंट वाइज पॉइंट्स कि कौन से आइटम्स किस हेड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे. सो द फर्स्ट हेडिंग विच आर
राइट डाउन अंडर द हेडिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो सबसे पहली हेडिंग होती है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वी राइट डाउन, so first of all, what is the definition of revenue from operation? It is very important term. What is revenue from operation? Revenue earned from the business activity of the company. This normal word we can say that what is revenue from operation? The revenue earned from the business activity, from the business activity of the company. यानी कंपनी की जो बिजनेस एक्टिविटी से जो भी हमें पैसा अर्न होता है, जो भी हम पैसा कमाते हैं, इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, सो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या दिखता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम. द फर्स्ट वन इज अ revenue from सेल ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कंपनी जिस प्रोडक्ट को सेल करती है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी रेवेन्यू होती है उसे हम लोग फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट. और उसमें से इफ देयर एनी रिटर्न्स, कोई भी सेल्स रिटर्न हो जाए तो उसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं. So the first value which are recorded under the revenue from operation, that is revenue from sale of product. Number second is revenue from sale of service. Sometimes company कोई service भी provide करती है, so revenue from sale of service उसको भी record करते हैं under the revenue from operation. And any other kind of operating revenue, other operating रेवेन्यू, कोई भी अदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर कंपनी अर्न करती है तो उसे भी हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं. लाइक अ सेल ऑफ स्क्रैप. कंपनी ने अपने किसी भी पुराने सामान को, स्क्रैप मटेरियल को सेल करके जो पैसा कमाया, इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू. सेल ऑफ स्क्रैप. कमीशन, अगर कंपनी कमीशन का बिजनेस करती है तो जो भी कमीशन मिलता है इट विल बी शोन एज इन अंडर द कॉलम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. So you can see that रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं? रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करती है, कोई भी बिजनेस करती है, तो उस बिजनेस करने से जो भी उसे पैसा आता है, लाइक अ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस और एनी अदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द revenue from operation. So this is the first heading of the profit and loss account. So you can see that statement of profit and loss में सबसे पहले हम लोग कौन सा हेडिंग डिसाइड करते थे? That is revenue from operation. अब हम लोग इसमें कुछ एक्सेप्शनल की बात करेंगे. कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता दूं. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी properly. That is points to be noted. Points to be noted. In case of फाइनेंस कंपनी, अगर कंपनी कैसी हो? फाइनेंस कंपनी. इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, नंबर वन, डिविडेंड रिसीव्ड. नंबर सेकंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. नंबर थर्ड, प्रॉफिट और गेन कह सकते हो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट.
and revenue from financial services. Revenue from financial service will also the part of revenue from operation. अपने दिमाग में रख लेना कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, कैसी ऐसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बना रहे हैं जो फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना. व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द फाइनेंस कंपनी? यू नो वेरी वेल, फाइनेंस कंपनी का काम होता है लोन प्रोवाइड करना. क्या प्रोवाइड करना? लोन प्रोवाइड करना. सो जो कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है वो क्या करती हैं? इन्वेस्ट करती हैं पैसा, कंपनी के पैसे में भी इन्वेस्ट करती हैं, उनके पैसे में शेयर में इन्वेस्ट करती हैं, डिवेंचर में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसके बदले उनको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके उन्हें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है. तो ये सारी चीजें जो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें वो अपने क्या करते हैं? एज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिकॉर्ड करते हैं. बट अगर हम सिंपली बात करें कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, वो नॉर्मल कंपनी है, तो नॉर्मल कंपनी के केस में ये सारे आइटम्स अदर रेवेन्यू में काउंट किए जाते हैं. फिर से सुन लीजिए, अगर कोई फाइनेंस कंपनी है तो ये सारे आइटम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने जाएंगे. अगर फाइनेंस कंपनी नहीं है या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, एक नॉर्मल कंपनी है, तो नॉर्मल कंपनी के केस में ये सारे आइटम्स अदर इनकम में काउंट किए जाएंगे. सेकेंड हेडिंग विल बी द अदर इनकम. So the second heading which are covered under the statement of profit and loss, that is other income. What is other income? Other income is the revenue which is not earned, from business activity, from business activity. यानी कोई भी इनकम जो हमें बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं होती है. यानी अगर वो बिजनेस एक्टिविटी से अर्न होती है तो इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर बिजनेस एक्टिविटी से वो इनकम अर्न नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदर इनकम. जैसे एज लाइक इट इज, यू कैन सी दैट द फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो इन्वेस्टमेंट पे, या फिर कोई अदर सर्विस चार्ज मिले तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होगा. लेकिन अगर कोई कंपनी नॉन फाइनेंस कंपनी है तो सिचुएशन में जो भी कमीशन है, जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द अदर इनकम. तो अदर इनकम में वो सारी चीजें इंक्लूड होने के साथ साथ कुछ अदर चीजें भी इंक्लूड होती हैं, लाइक अ डिस्काउंट रिसीव. जैसे कि अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए. नंबर सेकंड इज अ रेंट रिसीव्ड. अगर हमें रेंट मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. And refund of income tax. Refund of income tax. And sale of miscellaneous items. कंपनी में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको सेल कर देते हैं, लाइक अ न्यूज़पेपर. ओल्ड न्यूज़पेपर हो, उसको सेल करने से जो भी पैसा मिलता है, इट विल बी नोन एज द अदर इनकम. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल रिलेटेड टू द अदर इनकम. तो बेसिकली ये सारी इनकम तो अदर इनकम होती है. इसके अलावा जो भी फाइनेंस कंपनी की इनकम से रिलेटेड होता है, फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है? अगर डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सब भी आपके अदर इनकम का पार्ट होता है. इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अगर कंपनी फाइनेंशियल है तो सिचुएशन में ये सारी इनकम क्या हो जाएंगी? ये सारी इनकम तो अदर इनकम है, साथ ही साथ वो सारी इनकम भी किसका पार्ट बन जाएगी? अदर इनकम का पार्ट बन जाएगी. So the fourth heading will be a expense, and you know very well expense में कई सारे heads होते हैं under the profit and loss account. expense में कौन कौन से head होते हैं? सबसे पहला होता है आपका cost of material consumed. First heading which are covered under the main heading, that is expense, that is cost of material consumed.
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपका क्या क्या चीजें होती हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपका आता है नंबर वन, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस परचेज स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जैसे आप लोग 11th में कैलकुलेट करते थे ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वैसे ही आपको फोर्थ हेड में जो एक्सपेंस का सबसे पहला हेड होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है? मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें जितना मटेरियल आपने परचेस किया प्लस और उसमें से जितना आपने क्लोजिंग मटेरियल था उसको आपने क्या किया? डिडक्ट किया। तो द फर्स्ट हेडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कितना अमाउंट पुट करना है। उसके बाद आता है दूसरा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दूसरा हेडिंग है, दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आपका कौन कौन सी आइटम्स आते हैं? तो पहले इसमें क्लियर कर लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मटेरियल का मतलब होता है वो सारे चीजें जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, यानी मटेरियल हम क्यों खरीदते हैं? ताकि हम उससे फिनिश गुड्स बना सके। ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वो प्रोडक्ट खरीदना जिसको हम सेल के लिए यूज कर रहे हैं। मटेरियल जनरली किस वर्ड के लिए यूज होता है? जिससे हम सामान बनाएंगे। दो तरह से सामान हम खरीदते हैं, या तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिर सामान बनाकर मार्केट में बेचते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम प्रॉपरली एक फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक फिनिश प्रोडक्ट खरीदा, काम हुआ, ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। सो उसमें कुछ चेंजेस किया नॉर्मली। सो दो तरह का चीज है यहाँ पर। मटेरियल कंज्यूम का मतलब है सामान को खुद बनाना, और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है बना बनाया सामान खरीद लेना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड? सो स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेलिंग। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेलिंग। तो अगर कोई कंपनी कोई ऐसा गुड्स खरीदती है जिसे वो रीसेल करना चाहती है तो उसको हम लोग किस हेड में शो कराते हैं? दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो दोनों में अंतर है, इस परचेज ऑफ मटेरियल में और इस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में काफी डिफरेंस है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम वो सामान खरीदते हैं जिससे हम फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और यहाँ हम बना बनाया सामान खरीद रहे हैं। So the third heading which are covered under the fourth major heading, that is expense. The heading is change in inventories of finest goods and WIP and stock in trade. As you can see that expense का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहली हेडिंग होती है वो होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द लास्ट इज क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद होता है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो आप रेडीमेड गुड्स परचेस करते हो उसकी वैल्यू आप लिखते हो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP इन स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज इसमें इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ किसकी इन्वेंट्रीज इंक्लूड होती है? फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड की। उसका भी क्या? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में से हम क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। किसका ओपनिंग क्लोजिंग? फिनिश गुड्स का, WIP का यानी वर्क इन प्रोग्रेस का, या स्टॉक इन ट्रेड का। उसी तरह से किसका क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश गुड्स का, WIP का एंड स्टॉक इन ट्रेड का। माइनस कर देते हैं। ये चीज प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में से जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिडक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आंसर पॉजिटिव में आए, आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है।
तो एक्सपेंस का ये जो पार्ट है, सी पार्ट, थर्ड पार्ट है, दैट इज चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी इन स्टॉक इन ट्रेड। एक्सपेंस की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, विच आर टोटली बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सपोज अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपए है, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, यहाँ एक्सपेंस आपका कम हो गया क्योंकि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है 10,000 रुपए। तो ये वैल्यू आपके एक्सपेंस को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। So this is the third heading which are written under the expense heading. The fourth heading, that is employee benefit expense, which are covered under the expense heading. आप देख रहे हो कि रेवेन्यू फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सबसे पहली हेडिंग थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर थी टोटल अदर इनकम, फिर दोनों को ऐड किया हो गया टोटल रेवेन्यू। फोर्थ होता था एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर था आपका चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग आपने एडजस्ट कर दिया। अब आप जो आते हो अदर एक्सपेंस, मतलब इनकम एक्सपेंस की कुछ अलग कैटेगरी थी, वो कैटेगरी है ये फरका स्टार्टेड फ्रॉम द फोर्थ वन इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस के अंडर में हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कोई भी एक्सपेंस जो हम लोग बियर करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए इंकर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव इनकैशमेंट, contribution to provident fund, contribution to provident fund, okay, contribution to provident fund, gratuity fund, और एनी अदर फंड, कोई भी और फंड हो उसमें अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, या फिर अदर काइंड ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, अदर काइंड ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस लाइक मेडिकल एक्सपेंस, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वेजेस दे, सैलरी दे, बोनस दे, लीव इनकैशमेंट दे, कंट्रीब्यूशन करे प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी फंड में या किसी और फंड में, या स्टाफ के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा करे, या उनका मेडिकल एक्सपेंस क्लियर करे, या उनके कैंटीन का एक्सपेंस क्लियर करे, ये सब का सब एक्सपेंस किसके अंडर कैटेगराइज किया जाता है? दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कैटेगराइज किया जाता है। So this is the items which are written under the employee benefit expense. So you can see that our profit and loss account denote into the various headings. The first one is the revenue from operation. Revenue from operation में हम लोग business की operating income को include करते हैं, जिसमें sale of service, sale of product, उसमें से अगर कोई return है तो माइनस होता है, या other any kind of other operating income होती है तो उसको हम लोग revenue from operation में written होता है। फाइनेंस कंपनी की सिचुएशन में अगर कोई इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, या फिर अदर काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको हम लोग कहाँ राइट डाउन करते हैं? इट विल बी राइट डाउन अंडर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर नॉन फाइनेंस कंपनीज है तो ये सारी इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब अदर इनकम के क्राइटेरिया में। और जनरल अदर इनकम होती है लाइक डिस्काउंट रिसीव हो जाए, अगर आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव हो जाए, रेंट रिसीव हो जाए, कमीशन रिसीव हो जाए, ब्रोकरेज रिसीव हो जाए, तो ये, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स्ड एसेट को सेल करने से कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो इट विल बी रिटन डाउन अंडर द अदर इनकम। और जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करते हो तो जाता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन में आपको देखते हो कई तरह के टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन के बाद आप देखते हो एक्सपेंस के कई तरह के हेड्स हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कितने हेड्स डिस्कस कर लिए हैं, कितनी हेडिंग डिस्कस कर लिए? 4 हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड हेडिंग होता है आपका परचेस ऑफ स्टॉक इंक्रीज, थर्ड हेडिंग होता है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP एंड फिनिश्ड गुड WIP एंड स्टॉक इंक्रीज, और फोर्थ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्ट। इसके बाद की जितने भी स्टेप्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।